Okay, so we are going to start with logarithms today. Now, by and large, you'll see the questions in competitive exams, which are formula based and application based, right? Now, earlier we used to use logarithms for complex calculations. So that was the basic function that we had. Earlier we used this for. We used to have a logbook, whereby we could have done large calculations using certain values in logbooks. However, for us, entrance examination point of view, you need to know the basic properties and rules, laws governing logarithms, and applications of that. So that is what we will be having in today's session. So basically, log is nothing but it is another way of writing a number to the power of 3. For example, let's say you have any number in the sense that let's say you have 10 cube is 1000, right? Now this thing basically is nothing but this can be written as log of 1000 base 10 is equal to 3. So log of 1000, that means what we are doing is, if you look at this, 10 की power 3 is equal to 1000, right? So basically, that is the basic definition of log. Now we may say, let's say, a की power x is equal to, let's say, n. So what I would say that log of n, right, base a is equal to x. So that means any number, whose powers, any number whose power you have expressed, you are getting some sort of answer, right? So that is known as a logarithm. Now, a few things to understand here. When we are taking, a power of certain number, in this case, let's say a. So we are taking positive number here. We are not taking negative number ki power something. This could be a fraction. It could be a decimal value, but it is a positive value. Now, if you take a positive value and you take any power, it could be integral, it could be fractional, it could be integral, it could be fractional. Okay? It could be both positive or negative, right? It could be both positive or negative. What will it result in? Now, let's say, a की power x. Now, this value, if it is, we are just taking positive values for the timing, let's say. Even if it is a negative value, let's say I have, 2 की power 1. So obviously you get 2. Let's say you have 2 की power half. What do you get? You get root 2, 1.414. Let's say you have 2 की power minus 2, which is negative value. What do you get? You get 1 by 2 square, which is 0.25. Let's say you have 2 की power minus half. So what do you get? 1 by root 2. Right. So this is 1.414 to 0.702. That's how you do it. क्या हुआ सचिन? सर अभी ज्वाइन की थी क्लास, इसलिए छूट गया सर। कल भी यही कहा था कि ट्यूशन जात के आते हो क्या? यस सर। कहाँ पे? कितने बजे फ्री होते हो वहां से? 6 बजे फ्री होता हूँ सर, आज थोड़ा लेट हो गया, टेस्ट था वहाँ पे। अच्छा, मैं तुम्हें ये लॉगरिथम की डेफिनेशन समझा रहा था कि किसी नंबर की पावर, कोई भी नंबर अगर हम पॉजिटिव नंबर की पावर करें तो कुछ आंसर आएगा, राइट? कोई नंबर की पावर करेंगे तो कोई आंसर आएगा। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो हमें पता है 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। यस। ठीक है,
तो जनरल फॉर्म में मैंने लिखा था कि भाई a की पावर x अगर n है, a की पावर x अगर n है, यानी a सम नंबर, उसकी पावर x, तो log of n बेस a will become x. ना जब हम किसी की पावर रेस करते हैं तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, हम नेगेटिव की पावर नहीं रेस करते, हम इस वैल्यू की पावर, पॉजिटिव वैल्यू की पावर रेस करते हैं. तो ध्यान से देखो, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की पावर रेस करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू यानी a है मान लो, उसकी पावर हम कुछ भी रेस कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल. तो मैं कह रहा था आंसर जो है ना वो पॉजिटिव ही आएगा. समझ में आ रहा है? यानी कि a की पावर हम कुछ भी करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव यानी ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो log ऑफ n है, ये n हमेशा पॉजिटिव होगा. क्यों होगा? इट कैन नॉट बी नेगेटिव, बट इट कैन बी फ्रैक्शनल. इट कैन नॉट बी नेगेटिव. यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लॉजिक, बिकॉज एनीथिंग, any positive quantity to the power of fraction, integer, negative fraction will always result in a positive value. जैसे 2 की पावर 1 मान लेते हैं हमने, ये पावर है 1 आ गया, आंसर 1 आ गया तो ये 2 हो जाएगा. 2 की पावर हाफ 1.414, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करी? n को. तो अगर आप देखो नेगेटिव पावर लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा आंसर, नेगेटिव फ्रैक्शन लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा. यानी n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू. समझ में आ रहा है? n cannot be negative, it cannot be zero also, because if any positive number to the power of anything can never be zero, right? It can only be zero in an infinite case where you know this becomes a fraction and it is tending to infinity. For example, this value is a very, you know, this is a fractional value, let's say 1/2, and you are raising it to almost infinity, then this will tend to zero. Only that means then only n will become zero. So it means log of negative and zero is not defined. यानी अगर हम log of, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं log of यहाँ पे नेगेटिव और जीरो इज नॉट डिफाइंड. सर n की जगह इरेशनल नंबर ले सकते हो? कहाँ पे? n की जगह हाँ हाँ, √3 √4 लिख सकते हो, वो तो पावर नेगेटिव हो गया ना. हाँ लिख सकते हो, इरेशनल लिख सकते हो. a की जगह भी ले सकते हैं इरेशनल? हाँ एक ही जगह भी ले सकते हो इरेशनल, कोई बात नहीं. ठीक है, रियल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक, तो नेगेटिव और जीरो इज नॉट डिफाइंड. ये बेसिकली log x होता है. अगर हम इसका, अगर मैं मतलब एक ग्राफ बना के बताऊं log x, अगर हमें कुछ वैल्यूज भी याद हैं तो अगर हम, अब अगर हमारा जो बेस, ये इसको बेस बोलते हैं, ठीक है, अगर ये बेस 10 है, ठीक है, मान लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम. ठीक है, अगर हम बेस कई बार e ले लेते हैं, जो जो एक्सपोनेंट होता है, इरेशनल नंबर है, जैसे कि जो आप पूछ रहे थे 2.171 होता है, दिस इज नोन एज नेचुरल लॉगरिथम. ठीक है. Now normally we assume if nothing is given we always take a common logarithm. So this, इसको हम ln भी बोलते हैं, ln रिप्रेजेंट करते हैं, यानी log to the base e is also represented as ln means natural, n means natural, so not natural logarithm. Right, now if you, let's say if I take, you know, some value n, ठीक है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ log x ले लेता हूँ एक बार के लिए. ठीक है, इनपुट वैल्यू है. ठीक है, ये x है तो y इज इक्वल टू log x मान लेते हैं. तो अगर मान लो मैंने 2 ले लिया, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है. ठीक है, अगर मैंने log 4 ले लिया, मान लेते हैं, सॉरी log 4 नहीं, 4 ले लिया, तो log 4 की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी, 0.6010 हो जाएगी. log 1 ले लूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0. ठीक है, और मान लेते हैं मैंने हाफ ले लिया, log हाफ ले लिया, अभी मैं इसका बताऊंगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -0.3010. 1/4 ले लिया तो इसका आंसर आ जाएगा -0.6010. जब ये मान लो x कोऑर्डिनेट है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर से -1 है, -2 है, -3, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3, मतलब ये मेरा x है यहाँ पे x एक्सिस पे, ये मेरा y है, y का मतलब है यहाँ पे log x की वैल्यू. जब x की वैल्यू 1 है तो log x की वैल्यू 0 है. जब x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू
0.3 है, मतलब ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे 3 होगा तो इसका आंसर थोड़ा सा आएगा, 4 होगा तो 0.66 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे ही मैंने log x की वैल्यू हाफ पुट करी तो हाफ की वैल्यू मैंने बताया 0.33, तो अगर ये वैल्यू -1 है, ये वैल्यू -2 है, तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 1/4 यानी 1/4 पुट करूंगा तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ऐसे चल रहा है, मतलब नजदीक से होते हुए ये 1 पे करते हुए ऐसे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मेरा log x का ग्राफ है। सो जो log x यानी जो रिजल्ट है वो कभी भी, जो रिजल्ट है वो ऊपर और नीचे जा सकता है, लेकिन जो इनपुट वैल्यू है यानी x की वैल्यू है, ये जो log ये इट इज नॉट गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। द रीजन बिकॉज एनी पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी करोगे तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो अंदर वाली वैल्यू है x, मैंने कहा था ना log is not defined for negative quantity, यानी this x cannot be on the left hand side of the of this graph, मतलब x axis जो है उसके लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट है यानी कि log x जो है, log x का रिजल्ट यानी ये y is equal to log x, तो जो y की वैल्यू है यानी log x का की जो टोटल वैल्यू दैट कैन बी पॉजिटिव कब होगा, जब x इनपुट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो log x बढ़ेगा, x की वैल्यू फ्रैक्शनल होगी यानी 1 से कम होगी, 1 से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से 1 के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ऐसे होता जाएगा, ये नीचे सीधा चलता जाएगा ऑलमोस्ट, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इट विल टेंड टू इंफिनिटी। सो दैट इज हाउ log इज बेसिकली डिफाइंड। ये बेसिक हमारा log की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ तक की। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ऑफ कोर्स नोबडी इज रियली गोइंग टू ask you per se definitions and graphs, but well especially for IPM students you need to understand कि ये knowledge हमारे लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं ग्राफ के अंदर या फंक्शंस के अंदर का इसका यूज हो सकता है। So are we required to remember certain values like log 2, log 4? How do I ascertain? So are we required to remember them? If you remember it is nice, मतलब log 2 तो याद ही होता है, होना भी चाहिए, log 2 log 3 ये दो वैल्यूज याद कर लो बस। हालांकि चांसेस आर दैट दे विल गिव यू, मतलब whenever they give you some values which are required to be found out, they will give you the exact value of log 2 log 3 whatever. If you know log 2 you can always find out log 4 log 8. I'll just tell you how do we do that. But if you remember that's nice, but even if you don't remember, chances are very likelihood that they will always give you the value, or if they're not giving the value, the answer will itself be in the form of log, यानी कि log 3 plus log 8 इस टाइप के फॉर्मेट में हमारा आंसर होगा। तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, if it's a burden on you then you can simply ignore it, no problems. Right now some of the properties of logarithms that we need to understand, that we really need to study, is that log of AB is written as log of A plus log of B. When I'm saying we are assuming any base, it could be any base, C base, D base, anything. Of course, it has to be a positive quantity. So log of AB is log of, that means if you want to find, let's say log 20, so that can be taken as log of 4 plus log of 5. So if you know the log of value of log 5, you can always handle log 4, you can find log 20. Log of A plus B will give you log AB, or log of AB will give you log of A plus B. This is important property. Then log of A by B is log of A minus log of B. That means, let's say we are looking at log of 5 by 4. So the answer is you find log 5 minus log 4. That is the characteristics of this. Then if you have log of A ki power M, so you write M log A. Say for example, we are looking at finding out log 2 square, or let's say log 4. Log 4. So this may be written as log of 2 square.
Now this is a power, you can write it as 2 into log 2. Now if you know the value of log 2, you know the value of log 4. Similarly 8, for example, if you were to find out log 8, so you may want to write it as log of 2 cube. So you may take out 3 common here, log 2. If you know the value of log 2, you multiply by 3, you get log of 8. So that's how you use this formula. Log of a ki power m is equal to m log a, right? Then let's say, you have, log of a, let's say log of a base b मैंने यूज कर लिया है, log of a base c, right? You can write this as log of a with some base d whole divided by log of c with the same base d. समझ में आ रहा है? और if I have, let's say, log of 2 divided by log of 3, you may want to write this as log of 2 base 3. You can also use this. ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी होती है. Then there is important property, उसको बेस चेंज. हाँ सचिन बोलो. और दोबारा बताना सर एक बार. मैं कह रहा हूँ मतलब log a बेस c है, ये बेस है, यहाँ पे अपन ने बेस नहीं लिखा. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मान लो 10 हो सकता है या c हो, कुछ भी बेस हो सकता है. अब मैंने बेस लिखा log of a बेस c, तो अपन इसको log a सम न्यू बेस d, कुछ भी हो सकता है, log c सम a by c को ऐसे लिख सकते हैं. यानी कि मान लो मेरे पास एक वैल्यू है log 5 बेस 8, मैं इसको लिख सकता हूं log 5 डिवाइडेड बाय log 8. बस ऐसा लिखा जाता है. अब बेस क्या लेना है, कोई भी ले लो, मतलब इट हैज टू बी कॉमन बेस, जो ऊपर लिया वही नीचे. मान लो 10 ले लोगे तो चल जाएगा, रिजल्ट सेम आएगा आपका. ठीक है, या फिर ऐसे दिया हो, मान लेते हैं log 5 डिवाइड बाय log 2, आप इसको लिख सकते हो log of 5 बेस 2. ठीक है, Yes, sir. फिर log a base c can be written as 1 by log c base a. इसको बेस चेंज रूल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है ये. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मेरा बेस सेम हो. लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो प्रॉब्लम में आ गए. तो बेस सेम करने के लिए हम कई बार रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, तो बेस सेम हो जाता है. तो log a बेस c कैन बी रिटन एज 1 बाय log c बेस a. बेस ये वाला बेस बन जाएगा, ये वाला नंबर बन जाएगा, अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो. ठीक है, देन सर हाँ, इसमें सर फिफ्थ में फोर्थ भी अप्लाई हो सकता है? इसमें हाँ सर, सेम सिमिलर ही है सर, जैसे log a c. हाँ, यही तो किया है मैंने, ये दोनों बराबर हो गए ना. अच्छा, मतलब log a और बेस c को मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हैं. हाँ, ठीक है मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो आप, दिस कैन बी रिटन एज, उसका रेसिप्रोकल लिखना चाहते हो ना, सर. ठीक है. इसको लिखोगे 1 बाय log c log a. ठीक है, विच कैन बी टेकन एज log a बाय log c. यही चीज आ गई. इसको लिख सकते हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी यहां लगा दो डिनोमिनेटर में, रिवर्स करोगे तो ये बन जाएगा, जो कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी बन गई. ये नहीं, नहीं समझ आया आपने क्या क्या. कोई नहीं, छोड़ दो, इसको समझने की जरूरत नहीं है. इन दोनों को समझ में आया इंडिपेंडेंटली है. हाँ हाँ, वैसे समझ आ गया. बस ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट बात है ये. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर ये लॉग में बेस एक्चुअल में होता क्या है, मतलब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि मान लो मैंने कहा, इसको कैसे पढ़ते हो आप? इसको हम पढ़ते हैं 234.
तो बेसिकली दिस नंबर इज 2 into 10 की पावर 2 plus 3 into 10 की पावर 1 plus 4. ठीक है. We are using this because we operate in base 10 system, because we are using 10 designs. ठीक है. अगर हम किसी और बेस में ऑपरेट करते तो इसका मतलब 2 3 4 मान लो, मैंने कहा 2 3 4 मान लो, कहा मैंने बेस 5, तो इसका मतलब होता है 2 into 5 की पावर 2 plus 3 into 5 की पावर 1 plus 4 into 5 की पावर 0. ठीक है. तो जब भी हम कोई भी काम कुछ भी करते हैं तो उसका एक एसेंस होना चाहिए, एक बेस. मतलब अगर एक तरीका तो ये समझाने का है कि भाई जब भी हम कोई चीज डिफाइन करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है. तो जो हम मैथ्स अपनी पढ़ते हैं, मान लो जितने भी नंबर सिस्टम्स पढ़ते हैं, उसका जो बेस है वो है कि हम 0 से लेके 9 तक हमारे पास डिजाइन है. हम उसके बेसिस पे हमने अपना सारा नंबर सिस्टम डेवलप किया हुआ है. ठीक है. तो जब हम यहाँ पे किसी नंबर को किसी नंबर की पावर लिखेंगे, ये देखो, किसी नंबर को किसी नंबर की पावर में लिखना है, समझ में आ रहा है? किसी नंबर को, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास 84 है. आपने बोला कि इस 84 को ऐसा लिखो कि वो 3 की पावर कुछ हो जाए. समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर को किसी भी नंबर की पावर की फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है. या फिर 84 को ऐसा लिखो कि किसी नंबर की पावर 3 में लिखा जाए. अब इसका मतलब है इसके अंदर 3 कंपोनेंट है. एक तो वो नंबर, दूसरा उस नंबर को हमें किसी नंबर की पावर में लिखना है. तो उस नंबर को, यानी कि 1000 को या कोई भी नंबर को जो कि लॉग की वैल्यू है, किसी नंबर की पावर में लिखना है. मतलब हम चाहते हैं 84 किसी एक नंबर की पावर में लिखा जाए, किसी एक नंबर की पावर में. तो ये जो नंबर है ये क्या है? कोई तो नंबर होगा ना, ये बेस है. भाई आपको 84 किसी नंबर की पावर में लिखना है, तो जो क्या है, चूंकि हम हमारे सर्च के अंदर ये बेस होता है, ये इंडेक्स होता है, तो ये बेस बन जाता है. पढ़ते हैं ना बेस, ये बेस है, इंडेक्स है. तो इसका मतलब है जो जो लॉग की वैल्यू है, यानी जो मतलब ये लॉग एन है, ये जो एन वैल्यू है, एन जो है वो किसी नंबर की पावर है. वो कौन सा नंबर है? वो ये है, इस नंबर की पावर है, इस नंबर की पावर एक्स है, इस नंबर की पावर एक्स जब करेंगे तो वो एन बनेगा. ये डेफिनेशन है. मतलब व्हाट इज लॉग? लॉग इज राइटिंग, रिप्रेजेंटिंग ए नंबर in the format of a power of some other number. It is about writing a number in the power of some other number. That some other number is known as base. Without that number, the definition of logarithm or logarithm itself does not exist. ये इसका मतलब है. ये बेस ही है. ये बेस का मतलब है किस चीज की पावर में हमें लिखना है ताकि वो नंबर आ जाए हम जिसकी बात कर रहे हैं. यानी कि यहाँ पे log a बेस सी, कुछ तो आंसर आएगा. मान लेते हैं मैंने कहा log a बेस सी. मान लो कुछ तो आंसर आ गया, मान लो आंसर आ गया. ये आंसर का क्या मतलब है? आंसर का ये मतलब है कि c की पावर जब ये आंसर करेंगे तो a आएगा. c की पावर जब ये करेंगे तो a आएगा. तो दिस विल एक्ट एज अ बेस. दिस इज एक्टिंग एज अ बेस. Base of what? Base for this answer. But what is answer? It is a power. Power of what? Such that when you raise this power to this base, you will get a. That is the definition of logarithm. इसका ये essence है. Okay, sir. Thank you. ठीक है. ओके. उसके बाद अच्छा, अगर log a बेस a होता फिर क्या होता? आंसर क्या होता? इसका बताओ मुझे, आंसर बताओ खुद ही. अब log a बेस, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा. 1. ठीक. देन मान लेते हैं log a c की पावर n है. समझ में आ रहा है?
बेस की पावर n है, सो दिस कैन बी written as 1/n log a base c. मतलब अगर a की पावर होता n तो यहाँ बाहर जैसे a की पावर था ना यहाँ पे, तो वो बाहर मल्टीप्लाई होगा. अगर बेस की पावर होगा तो यहाँ डिवाइड होगा, मतलब ओवरऑल डिवाइड होगा यानी 1/, से मल्टीप्लाई होगा. अगर मैं 7th को और 4th को कंबाइन कर दूं तो log ऑफ a की पावर m और बेस c a की पावर n, तो m वाला तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और ये वाला डिवाइड हो जाएगा n, ये बन जाएगा log ऑफ a बेस c. ठीक है. 9 a की पावर c की पावर log n बेस c इज इक्वल टू n, यानी कि मैंने कहा 5 की पावर log ऑफ 8 बेस 5, इसका आंसर 8 आएगा. ये क्या क्यों हो रहा है? हमें पता है log n बेस c इज इक्वल टू log n बेस c. ठीक है, इसके एनालाइज करो. मान लेते हैं ये log n बेस c इज इक्वल टू y होता तो क्या लिखते हम? log n की वैल्यू c की पावर y लिखते. ठीक है, तो इसका मतलब c की पावर y को ये लिखा जा सकता है. तो इसका मतलब है c की पावर ये y है. ठीक है, ठीक है, तो c की पावर ये n लिखा जा सकता है. सेम लॉजिक कैन बी रिटन एज n, जो नीचे लॉजिक लगा है. इसका मतलब है c की पावर log n बेस c इज इक्वल टू n. ये एनालॉजी ड्रॉ करिए मैंने याद रखने के लिए, और क्या. तो जब हम log किसी चीज की पावर को log ऑफ कोई करें और बेस सेम रखेंगे तो मेरा रिजल्ट सेम आएगा. ये हमारा रिजल्ट है. ठीक है, log a बेस b, सॉरी, a की पावर log b is same as b की पावर log a. सर इसमें बेस कुछ भी हो सकता है या ए या बी में से एक होगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है, सम बेस. ठीक है, ये इट कुड बी थॉट इन टर्म्स ऑफ log a हाँ, मतलब इसको प्रूफ तो ये है कि अगर हम log a log b इज सेम एज log b log a लिख सकते हैं. ओवरऑल मान लो ये मल्टीप्लीकेशन. अभी अभी हमने किया था ये m है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो दिस कैन बी टेकन हियर पावर. ये वही वाला है कि, तो ये बन जाएगा log ऑफ, सॉरी, log ऑफ b की पावर log a. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर है ना, ये मल्टीप्लाइंग पावर है, ये तो यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा मेरा log a की पावर log. ठीक है, क्योंकि दोनों log है हम दोनों तरफ एंटी लॉग लगा सकते हैं. मान लो मैंने कहा log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ n, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू n. ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लगाऊंगा, इसको एंटी लॉग बोलते हैं, कैंसिल करने का मतलब एंटी लॉग होता है,
इसका मतलब ये है कि ये लॉग लॉग हटा दिया तो मेरे पास आ गया b पावर log a इज इक्वल टू a की पावर log b। एक हेलो, हाँ जी सर। Sir, your mic is muted. ओके, अच्छा ठीक। हाँ तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इस केस में ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी भूल गए ना, मतलब एक भी भूल गए तो समझ लेना कहीं ना कोई क्वेश्चन उलझ जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर हमारे लेवल के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी यूज करेगा। इट इज नॉट ए क्लरिकल एग्जाम जहां पे वो सिर्फ 1 या 2 प्रॉपर्टी यूज करेगा। तो चाहे वो आईपीएम में, डेफिनेटली एसएससी में भी वो थोड़ा सा हायर लेवल पूछेगा। हायर लेवल का मतलब ये है कि इसकी डिफिकल्टी लेवल कैसे बनाते हैं, जिसमें ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होने लगती है। डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन आ गया कम प्रॉपर्टी का, सिंगल प्रॉपर्टी का आसान हो गया। एक ही क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली 3-4 प्रॉपर्टी लगानी पड़ी तो वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से इसकी डिफिकल्टी लेवल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सर तो सर वो एक बार 9th पॉइंट फिर से बताना सर, वो जो आपने लास्ट में 9th में समझाया था थोड़ा। ये तो बेसिक डेफिनेशन है ना, c की पावर n। लॉग की डेफिनेशन क्या थी? log n बेस इज इक्वल टू x, यानी बेस की पावर ये करेंगे तो n आ जाएगा, ठीक है। बेस की पावर तो मान लो log n बेस c, log n बेस c। c की पावर ये करेंगे तो n आ जाएगा, c की पावर n करेंगे तो ये आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। c की पावर log n करेंगे तो n आ जाएगा। a की पावर x करेंगे तो n आ जाएगा। x इसकी जगह मैंने मान लो यहाँ c लिख देता मैं, c की पावर x करेंगे तो n आ जाएगा। x की जगह बस मैंने log n बेस c लिख दिया, इसकी जगह मैंने x लिखा है बस। आपको पता है ना c की पावर x करेंगे तो n आएगा। x की जगह क्या है? ये x की जगह क्या है? ये येलो वाली वैल्यू डाल दो बस। x की जगह क्या है? ये बस, सर इसको एग्जांपल देना सर एक और। ये लिखा हुआ है। क्या एग्जांपल दूं इसमें मैं? वैल्यू डाल लो, एग्जांपल ही है ये। 2 की पावर log 7 बेस 2, इसका आंसर 7 होगा। की पावर log ऑफ 23 बेस 84, इसका आंसर 23 होगा। मोंकी की पावर log ऑफ डोंकी बेस मोंकी, क्या होगा आंसर? डोंकी। मोंकी मोंकी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है सर। सर कुछ इसमें ऐसा भी डिफिकल्टी दे सकते हैं, लाइक आपने एग्जांपल दिया ना 84 log बेस 84, तो 84 से कोई जैसे इसका हाफ नंबर दे दें या डबल या कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेट हो सकता है इसमें। मतलब 84 तो खत्म ही हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट क्या होना है इसमें? मतलब अगर इसमें 84 की जगह बेस में इसका हाफ दे दें या 84 की जगह इसका हाफ नंबर और बेस में 84 दे दे तो उसका नहीं, वो हाँ वो चार्ज। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं ना, अच्छा, प्रॉपर्टी नहीं लगा पाओगे। प्रॉपर्टी के लिए यही फॉर्मेट होना चाहिए एग्जैक्टली।
तभी लगेगी प्रॉपर्टी, वरना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट हम कर नहीं सकते, क्योंकि या तो इसकी पावर हो, मान लो इसका अंडर रूट दे दिया जाता, समझ में आ रहा है, तो हम कुछ का कुछ कर सकते थे इलाज। मान लो इसका अंडर रूट होता तो पावर हाफ हो जाती, पावर हाफ होती तो यहाँ बाहर आके क्या हो जाती, डिवाइड होती, तो यहाँ आके 2 हो जाती, 2 होके यहाँ हो जाती, फिर आंसर आ जाता 23 का स्क्वायर। मान लो मैं जो आप कहना चाह रहे हो, मान लो ये कह दिया log ऑफ 23 अंडर रूट ऑफ 84, ठीक है, ये हो गया मान लो क्वेश्चन। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 84 की पावर log ऑफ 23, 84 की पावर हाफ। अब हमें पता था कि ये जो पावर है यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 84 की पावर, सॉरी ये 2 है, ठीक है, तो 84 की पावर 2 इंटू लॉग 23 हो जाएगा। फिर इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी 84 की पावर log ऑफ 23 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस 84 ही है यहाँ पे बेस। अब इसमें फिर वो प्रॉपर्टी लग के आंसर 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलो सर 42 लिख दिया तो कुछ नहीं है इसका। ओके सर। ठीक है, फिर कुछ देखना पड़ेगा अलग जुगाड़। ठीक है, मैं 2-4 एग्जांपल्स देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको करो। हमें इवेल्युएट करना है log ऑफ 200 बेस 10 प्लस log ऑफ 40 बेस 10 प्लस 2 log 25। मतलब इसमें क्या है कि सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, इन अ सेंस सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में। सर 13 प्लस log 2 प्लस log 4 प्लस log 5। और सिंप्लीफाई करो। 13 प्लस log 40 हो जाएगा। ना, अब देखो किसी हर एक का करने का तरीका अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखना, बट चलो आंसर तो वहीं पहुंचना चाहिए। सर 14 प्लस log 4 हो जाएगा। ना, log 5 कहाँ से खत्म हो जाएगा तुम्हारा? सर उस पे दोबारा प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, वो रिवर्स वाली की। रिवर्स भी तो पॉसिबल हो सकती है कि log 2 प्लस log 4 है तो वो log 4 into 2 हो जाएगा। आइमन गलत है तुम्हारा थोड़ा सा। इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकर आओ सब लोग। सर ये रिवर्स काम करती है प्रॉपर्टीज की, अगर log a into b is equal to log a plus b है तो उसका उल्टा भी सही होगा। बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल सही है।
बेस सेम होना चाहिए बस। ये निकालना है सबको, log 5 की टर्म्स में लाओ। दिव्यम ने क्या दिया है, a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई कर लेना इसको। एक तरीका है कि सब प्लस में है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, खत्म बात। या तो अलग अलग सिंप्लीफाई करो, या पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये स्क्वायर है, 2 है तो यहाँ स्क्वायर चला जाएगा, तो इसको लिखते हैं log ऑफ 200 इंटू 40 इंटू 25 का स्क्वायर बेस 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा log ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100। 100 में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज log 10 है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। और ये 4 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 25। ठीक, तो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो log ऑफ 10 की पावर 1 2 5 आ गया, इंटू मेरे पास यहाँ 2 बचा, यहाँ पे ये 10 भी 25। तो बच गया ना, नहीं 5 ले लिया ना, 2 और 2 Yes, sir. 4 और 5, हाँ, इंटू 25। ठीक है, तो ये भी बन गया 50, तो ये बन गया log ऑफ 10 की पावर 6 इंटू 5 बेस 10। अब log ए भी है, तो हम इसको log ऑफ 10 की पावर 6 बेस 10 प्लस log ऑफ 5 बेस 10। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी लगी है, पावर में है तो बाहर आ जाएगा 6 log 10 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। तो ये खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, 6 प्लस log 5 बेस 10, ये आंसर आ जाएगा इसका। सर मैंने थोड़ा चेंज करके किया तो आंसर 4 प्लस log 4 आ गया है। नहीं आएगा, सर एक कुछ ही बार कर लो। करके देखना जैसे मैंने किया, मैंने 200 को 2 इंटू 10 टू पावर 2 लिया, 40 को 4 इंटू 10 लिया और 25 को 5 का स्क्वायर लिया, उसके बाद बस सिंप्लीफाई किया। रिपीट। इसके बाद क्या किया, इसका क्या किया, 25 को 5 का स्क्वायर लिया, 2 log 5 स्क्वायर। इसको करोगे log 2 बेस 10 प्लस log ऑफ 10 का स्क्वायर बेस 10, ये बनेगा। इसका क्या करूं, इसको कुछ नहीं कर सकता, log 4 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। सर इसका इसमें क्या प्लस करूं, 1 भी तो आएगा, है log 4 प्लस 1 भी तो आएगा, क्योंकि log 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 बचेगी। अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो 2 बचेगी। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2 log 5 का स्क्वायर बेस 10। ठीक, इसको तो सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर बाहर जाके 4 हो जाएगा, तो चलो सिर्फ इसको, log 5 बचेगा। हाँ कोई बात, इसको 4 बना देते हैं। ठीक, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू बनेगी 2 स्क्वायर बाहर आके, यस सर। ठीक है, प्लस log 4 बेस 10 log 2 बेस 10 प्लस 1 प्लस 4 log 5 बेस 10। अब आपका आ गया 3 प्लस log ऑफ 2 बेस 10 प्लस log ऑफ 4 बेस 10। 4 को 2 स्क्वायर करना चाहोगे, कर लो सर। बताओ तुमने क्या किया, अब मैंने नहीं किया था। फिर करना मैंने तो पड़ेगा ना, सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ ना। 2 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 10 हो जाएगा प्लस 4 log 5 बेस 10। सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना इसको। और इसके बाद सर ओम, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया है इसको ना शुरू हुए।
पौना घंटा हो गया है। इसमें जो ना समझ में आए बताना, कोशिश करता हूँ भी समझाने की, ठीक है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना कुछ तो करना पड़ेगा। 10 बनने की संभावना है क्योंकि 2 भी है 5 भी है, तो इसको बनाना पड़ेगा, अभी सॉल्व नहीं हुआ। इसको ऐसे करना पड़ेगा, log of 2 क्यूब बेस 10 प्लस log of 5 की पावर 4 बेस 10। अब जो तुमने गलतियां की है वो यहाँ सुधारनी पड़ेगी तुम्हें। log of बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये इसलिए कर रहा हूँ समझाने के लिए। ये दोनों एक 10 बनेगा, ये दोनों एक 10 बनेगा और ये दोनों एक बनेगा, 3 10 बन जाएंगे। यस सर। तो log ऑफ 10 क्यूब इंटू 5 बचेगा बेस 10। फिर इसको स्प्लिट कर सकते हैं, log ऑफ 10 क्यूब बेस 10 प्लस log ऑफ समझ गया 5 सर। बेस 10। तो ये 3 आ जाएगा, log 10 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। तो ये 3 हो जाएगा, तो तुमने ऑलरेडी 3 है, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा प्लस log 5 बेस 10 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 6 प्लस log 5 बेस 10। ये इसका तरीका है। सर हाँ समझ ही नहीं आ रहा कुछ। सर सर। से रिकॉर्डिंग वाली वीडियो मांगी। इसको समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा? सर एक्चुअली मैंने ना लेट ज्वाइन किया है, तो फिर आप मुझे रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दोगे? हाँ अभी कर दूंगा। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर वैसे आंसर क्या है सर? 6.699। क्या आंसर क्या 6.699 है क्या? 699 कहाँ से निकाल लिया तुमने? सर अपने को तो पता नहीं लगा सर, मैंने किया कैसे सर? log 25 को सर मैंने लेट कर लिया log 100/4। फिर हाँ तो सर वो फिर वहां से मतलब सोल्व किया है ऐसे। इसकी टर्म्स में तो यही आएगा। अब log 5 की वैल्यू 0.666 अगर है तो आपका आंसर सही है। सर जैसे log 200 को मैंने लेट कर लिया था log 2 into 100। हम्म तो सर वो तो आ गया था 0.3010 प्लस 2 आ गया था। हम्म वैसे सर 100/4 कर लिया था 25 को। हम्म फिर वहां से वो वाली जो आपने आइडेंटिटी बताई थी वो पुट करी थी सर उसमें। ठीक है। सर इससे तो लंबा पड़ गया बहुत ज्यादा मेथड वैसे। हाँ वो तो है ही, मैं कह रहा हूँ हर बंदा अपने अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि इसको कई तरीके से, अब पहले मैंने तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, ठीक है। कुछ लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कुछ इन दोनों को करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वही तो बात है कि देखो अब इसमें कई सारे रूल्स लगे, 5-6 तो लग ही गए। यस सर। तो फिर जितने ज्यादा रूल्स लगेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन टफ होता जाएगा। लेकिन मैंने कहा आपको रूल्स याद होने चाहिए, रूल्स नहीं याद हुए ना फिर गड़बड़ जाएगी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, जैसे आपने- एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन है बट ये आंसर ऑप्शन मैंने किसी और वैल्यू में दे सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे मैं log 5 को 10/2 लिख के log m-n वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो उससे थोड़ा अलग आंसर आ जाएगा बट सेम ही होगा। हाँ वो तो फिर हमें ऑप्शंस में मैच करा के देखना पड़ेगा, उसके आसपास पहुंचना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, मतलब मान लो 2 और 5 तुमने छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि अभी 10 बनने की संभावना है, वो तुमने करी नहीं है। नॉर्मली मतलब क्या है कि नॉर्मली वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में बचता है, क्योंकि उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, बचे हुए को तो रिड्यूस कर सकते हैं। और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेस क्या है। मान लो बेस 8 होता, ऑफ कोर्स वो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और उसमें बेस 8 दिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 8 के मल्टीपल्स अवेलेबल हैं, कहीं पे 4 अवेलेबल है, कहीं पे 2, इसका मतलब अभी आपने उसको सॉल्व नहीं किया पूरा, अभी उसको रिड्यूस करना बाकी है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो 4 और 2 में नहीं होगा, क्योंकि बेस 8 है, क्योंकि वो रिड्यूसेबल है। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई आंसर 4 में दे दे या 2 में दे दे या 5 में अलग अलग दे दे, तो इसका मतलब है कि वो आपने अभी तक रिड्यूस नहीं किया उसको जितना होना चाहिए था, जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई हमने नहीं किया, इसका ये मतलब है। समझ आ रहा है? हाँ एक बार जो आपने sir. कराया वो रिपीट कर दो एक बार, अभी ये जो सॉल्यूशन बताया वो। जो मैंने वाला कराया था ऊपर वाला, यस सर। मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। मैं भी रेड में बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन था, log ऑफ 200 बेस 10 प्लस log 40 बेस 10 प्लस 2 log 2, ठीक है। हमें पता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ q, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी वैल्यूज, यस सर। log a b, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये 2 बाहर है, इसकी प्रॉपर्टी में 2 ऊपर चला जाएगा,
यस सर। ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 4, ये सॉरी ये 3, यस सर। यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ ले आए। और फिर क्या किया, log ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। log ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। अगर c होता मान लेते तो यहाँ पे प्लस log c कर सकते थे, मान लेते हैं यहाँ c होता तो हमें यहाँ करना पड़ता प्लस log c बेस 10। ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी। लगाने का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 200 इंटू 40 इंटू 25 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करा हमने, 2 इंटू 100 लिखा मैंने, 4 इंटू 10 लिखा, 25 इंटू 25 लिखा, तो 100 में 2 जीरो, 4 इंटू 25 में 2 जीरो, 4 जीरो हो गए, और एक 10, 5 जीरो हो गया, यानी 10 की पावर 5 लिख लिया मैंने। बचा क्या मेरे पास, ये 2 बच गया और ये 25 बच गया, बाकी तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। फिर हमने इसको क्या किया, इसको मैंने एक स्टेप और ऐड कर देता हूं, मान लेते हैं इसके ऊपर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 10 की पावर 5 इंटू 50। समझ में आ रहा है? 2 इंटू 25, इसको फर्दर ब्रेक कर देते हैं, log ऑफ 10 की पावर 5, ठीक है, इंटू 6 इंटू 5। क्यों, 50 का जीरो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये यहाँ आ गया 10 की पावर 6 बेस इंटू 5। अब इंटू में वापस यही वाली प्रॉपर्टी लगा दी जो पहले लगाई थी ना, उसकी उल्टी, प्लस किया, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो गया। अगर अंदर में मल्टीप्लीकेशन है तो log a इंटू बी इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b, वो वाली प्रॉपर्टी लग गई। यस। log a का मतलब है ये, अब इसमें कौन सी लग गई, ये जो यहाँ लगाई थी, ये यहाँ ऊपर किया था, अब ऊपर है तो यहाँ सामने मूव कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो पहले ये किया log 6 प्लस log 5 बेस 10, ये वाला जो 6 है वो यहाँ ले आए, वो यहाँ पे, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ नजर आ रहा है, और log 5 बेस 10। अब log 10 बेस 10, अभी अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log 10 बेस 10 इज 1, यस सर। तो इसका आंसर बचेगा 6 प्लस log 5 बेस 10। ओके सर, थैंक यू। ये इसका तरीका, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, I want you to solve, let's say solve for x, log of x plus 1 ठीक है, प्लस log of x minus 1 is equal to log of 224। इसको सॉल्व करो। ये देख क्रिकेटर के नहीं पता तुझे, मैं तो देखती नहीं, और वो पुराने तो मेरे को सर प्लस माइनस 15। किसकी वैल्यू है ये प्लस माइनस 15? एक्स की। टेक्निकली तो आंसर गलत है और कुछ आंसर सही भी है। सर मेरी तो 225/223 आई है। आंसर क्या है, एक्स की क्या वैल्यू आ रही है? एक्स की वैल्यू है सर ये। ना, गलत है। ठीक है आयमन, ठीक है दिव्यम, गुड। मैं इसका चार्जर लगा दूं। सर आ गई 15 आएगी सर। सिर्फ प्लस 15 लाइन। सर
सर 15 आ गई। हाँ जी, -15 आएगा। सर +15 आएगा सिर्फ। सर आएगा सर +15। +15, -15 क्यों नहीं आएगा? लोग सर की क्योंकि लोग माइनस नहीं ये होती value- है, एग्जिस्टिंग। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना ये, क्योंकि -15 डालते ही ये -14 हो जाएगा और log ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, सो द आंसर x इज इक्वल टू 15। ये वाली लर्निंग थी यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन देगा वो +-15 और सब लोग लिख भी दोगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक करो ताकि मेरे को समझ में आ जाए आपको आ गया है। इसको ना log ऑफ मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ a की पावर 4 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर b की पावर 6। आपको इसको मुझे log a, log b और log c की फॉर्मेट में लिखना है। समझ में आ रहा है? मुझे आंसर बताओ इसका। सर 4/3 log a -2 log c -6 log b। फिर से बोलना। 4/3 log a हम्म, -2 log c -6 log b। ठीक। ठीक है अयमन। ठीक है नव्या, वो पावर में, हाँ ठीक है, पावर में भी डाल सकती है और बाहर भी आ जाएगा। हाँ जी, बाकी लोग। सर हाँ, सर 4/3 log a -2 log c -6 log b। ठीक है। नव्या प्लस माइनस का देखना, जरा ध्यान करना, आपका कुछ गड़बड़ है। सर हम्म, सर वो पहले क्वेश्चन का आंसर तो सर मेरा ठीक आ रहा है सर। अच्छी बात है, बढ़िया है। सर जैसे आपने कहा था ना 6.66। 6। हम्म, हाँ सर, उसमें log 5 की वैल्यू चेक करिए सर, वो 0.689 है, वही 699 ही है। ठीक है।
सर ये हर लॉग की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है? हाँ, हर लॉग की होती है, क्योंकि हर लॉग किसी नंबर की पावर को लिखा जा सकता है ना। लॉग की डेफिनेशन क्या है? दैट नंबर कैन बी रिटन एज ए पावर ऑफ सम नंबर। तो कोई भी नंबर ले लो, मान लेते हैं वो किसी नंबर का किसी पावर हो सकता है वो। अब वो क्या होगा, वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा, क्या वैल्यू होगी पता नहीं, लेकिन लिखा जा सकता है। मान लो 24, लॉग ऑफ 24 की कोई वैल्यू होगी, विच बेसिकली मीन्स कि log 24 किसी नंबर का पावर लिखा जा सकता है। तो किस नंबर का पावर लिखना है वो बेस कहलाता है, कि भाई ठीक है किसी भी नंबर का पावर तो लिखा ही जा सकता है। तो कोई मेरे से पूछा ना बेस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किसका पावर लिखना है, 2 की पावर लिखना है, 3 की पावर लिखना है, 10 की पावर लिखना है, तो वो बेस है। तो मतलब कुछ तो बेसिस होगा जिसकी पावर बनाना है। तो मान लो 24, मान लो बेस 10 है, तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या करें कि 24 आए। 10 की पावर क्या करें, क्योंकि 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 की पावर 1.5 करें, 1.6 करें, 1.9 करें, 1.8 करें, वो जो पावर होगा ना 1.8 1.9, वो log 24 की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? 10 की पावर वो जो वैल्यू होगी वो log 24 का, उसका मतलब ये होता है log का। ओके सर। ठीक है, अच्छा यहां तक तुम्हें ये बताओ प्रॉपर्टीज समझ में आती है? ये प्रॉपर्टीज मैंने कहा एक भी गलती हुई ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत घूम जाएगा। अगर थोड़ा भी मुश्किल क्वेश्चन बनाया है, मैंने थोड़े से ठीक ठाक लेवल लिए हैं, तो आपका उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पुरानी एप्लीकेशंस होती थी मेनली तो इसको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते थे, कि कैलकुलेशन निकालने के काम में आती है। ठीक है, बट अभी जो हमको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं, मान लेते हैं एक वैल्यू है y इज इक्वल टू 2 की पावर 20। ठीक है, 2 की पावर 20, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर। क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर। मतलब अगर अपन 2 की पावर 20 को लिखें, सॉल्व करें, तो आपको आइडिया होगा 2 की पावर 10 इज 1024। 20 करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 20, 1024 का स्क्वायर क्या होता है? वन जीरो फोर 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 एट। तो 6 डिजिट का आंसर है। कितने डिजिट का आंसर है? 6 डिजिट। Obviously, examiner is not asking us this exact answer because they will not give us log table. But how do you find out that it is 6 digit answer? 2 की पावर 20। अब 2 की पावर 20 तो 6 डिजिट है, मैं बोल दूं 2 की पावर 200, इसको थोड़ी ना हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कितने डिजिट का आंसर है, हाउ मेनी डिजिट्स, ये हमारा सवाल है। तो हम इसको कैसे करते हैं मैं ये समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है हमारा। इसका मैं डिटेल मेथड भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, फिर इसका शॉर्टकट भी समझ लेंगे। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही करना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लॉग करेंगे, तो लॉग वाई, इसको बोलते हैं अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अप्लाइंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स। तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर 20। तो यहां से मेरे पास आएगा log y इज इक्वल टू 20 log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, log y इज इक्वल टू 20, log 2 की वैल्यू दी गई होगी 0.3010 मान लेते हैं, हमें पता है। तो ये बनेगा 6.020। ठीक है, ये आ जाएगा। उसका एंटी लॉग हमें देखना पड़ेगा क्या? हाँ, इस केस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ।
ये जो होता है ना, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारा मैंटिसा है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद एंटी लॉग लगाते हैं। y निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ किसका, लॉग y का। और यहां से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ई की पावर, क्या, ये ई की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं y की वैल्यू निकालेंगे हम, ओके सर। y की वैल्यू, एंटी लॉग में e की पावर नहीं, हम y लॉग जैसे हमने अप्लाइंग टू साइड लेफ्ट, वैसे ही हम एंटी लॉग लगाते हैं। हम एंटी लॉग सिर्फ मैंटिसा का लगाते हैं, यानी 0.020 का। ठीक है, आगे भी रहा होगा। नॉर्मली ये 4 डिजिट का या 5 डिजिट का होता है। अगर आप लोगों को शायद मिली नहीं होगी, एक टेबल मिला करती थी, लॉग टेबल बोलते थे। ऐसे होता था 00, 01, 02, 03 ऐसे चलता था। और ठीक है, और यहाँ पे 01, 02, 03, 04 ऐसे, और यहाँ पे एक मीन डिफरेंस बोलते थे, ऐसे होता था। तो मान लेते हैं हमें 02 यानी कि ये वाली, उसके बाद 00, ठीक है, यानी इसके नीचे वाली डिजिट्स, मतलब वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती थी। मान लो 00 है, यहाँ पे वैल्यू आ गई 01, 02, 03। तो हमें वैल्यू कौन सी चाहिए थी, 0200, यानी 02 यहाँ पे कुछ डेसिमल में आता, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ डेसिमल में आता, पॉइंट मान लेते हैं 01448 ऐसे कुछ आता। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है एक्चुअली। जो आप कैलकुलेशन करोगे ना, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ 4 डिजिट की वैल्यूज मिला करती थी। अगर लॉग टेबल कहीं होती तो मैं दिखाता पॉइंट, मेरे ख्याल से ये बनेगा 0104 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है ना 0104, ये जो डेसिमल है, ये शिफ्ट करना पड़ता है हमें। कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स +1। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, हमें कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स +1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स +1 यानी 7 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। बट इंसिडेंटली इस केस में, फर्स्ट केस में 0 आ रहा है, तो मेरा आंसर जो बनेगा वो 6 डिजिट का बन रहा है। लेकिन जनरली जब बड़ी वैल्यूज दी जाती हैं तो 0.1 से आ जाता है। मतलब मान लेते हैं ये 200 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 200 आ जाता, जैसे कि log of y is equal to 200 into 0.3010। ठीक है, तो 60.10 समथिंग आ जाता। इसके बाद एंटी लॉग लगाते, नंबर ऑफ डिजिट्स पता है कितने बनते, 60 + 1, ये आंसर होता आपका, यानी 61 डिजिट का आंसर बनेगा। 2 की पावर 200 सॉल्व करेंगे तो 61 डिजिट बनेगा। ऐसे ही लॉजिकली ये 6 + 1 7 डिजिट का आंसर बनना चाहिए, लेकिन उसमें 0 आ गया होगा, इसलिए वो 6 डिजिट बना रहा है। नंबर ऑफ डिजिट्स का आंसर निकालने का ये तरीका होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो हम एक बार देख लेते हैं। ये नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन पूछ रहा है। इसमें एक तरीका तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स +1 कर दो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स +1 लॉग निकाल के, लॉग की वैल्यू दी जाएगी, जो यहाँ पे आएगा ना उतना +1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स में। इस केस में हमारे पास 7 डिजिट्स आना चाहिए, पहले 0 लग रहा होगा, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। इसका 1024 का स्क्वायर यही बनेगा ना, एक बार करना, मेरे को दिखाना आंसर। 2 की पावर 20 निकालना, कितना बन रहा है,
60 डिजिट्स में बनेगा वैसे। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, बनना तो 60 डिजिट चाहिए अनलेस 0 आएगा। कितना आ रहा है? 1024 2 की पावर 20। एक मिनट, हमने गलती कर दी है। कैरेक्टरिस्टिक्स +1 यानी C+1, यानी मेरा जो आंसर बनना चाहिए ना 7 डिजिट्स का बनना चाहिए। सर 1048576 बन रहा कुछ है है। 1048576 1048576। यस सर। तो 7 डिजिट का बन रहा है ना, तो मैंने Yes, गलती sir. क्या कर दी? 10। हाँ, तो इसमें कुछ गलत आ रहा था, तो 7 डिजिट्स का बनेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स +1 ही बनेगा, डेसिमल नहीं आएगा। तो इसका जो हम ये जो टेबल होती है ना 0 0 ये वो, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ये क्या निकाल दिया फिर मैंने, ये बनेगा 1048576, यानी 7 डिजिट्स का आंसर आ रहा है। ये कैसे आता है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स +1 करके आता है। तो अगर हम log 200 निकालेंगे तो हमारा ये 60 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो बनेगा ना 61 बनेगा। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना बनेगा? 61। ये इसका एप्लीकेशन है कि कोई बहुत बड़ा नंबर हो, कितना बड़ा उसका स्ट्रिंग होगा, कितना बड़ा आंसर आएगा, वो आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा y की पावर 2 की पावर -20 होता, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आता 0 समथिंग 00000 करके, फिर हमारा कुछ आंसर आता 137, जो भी आता हमें पता नहीं। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो डिजिट है उसके और बिंदी के बीच में कितने जीरोस आएंगे? समझ में आ रहा है? सर 2 की पावर -20। हाँ, -20 है, यानी कि बेसिकली 1 की पावर ये बनेगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय जो आपने आंसर बताया क्या बना था 1048576। ये सॉल्व करना है अपने को, तो बिंदी तो लगेगी ना, बिंदी 0 0 कुछ तो आएगा, उसके बाद सॉल्व होएगा ना। समझ में आ रहा है? इसको कैसे Yes, सॉल्व sir. करोगे? 1 को सॉल्व करोगे ऐसे 1048576, पॉइंट लगाओगे 0 नहीं गया 0 फिर 0, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो ऐसे कितने बिंदी और उसके बीच में कितने जीरोस आएंगे, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, log of y इज इक्वल टू log of 2 की पावर -20, log of y इज इक्वल टू -20 log 2। ठीक, फिर ये बनेगा log y इज इक्वल टू -20 इंटू 0.3010 विच इज -6.021, जो भी है ये बनेगा, ये माइनस है। ठीक है, ये log y की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है? एंटी लॉग। दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं? एंटी लॉग लगाते हैं, ताकि मेरा क्या रिजल्ट बन जाए y। तो यहां पर भी मुझे एंटी लॉग लगाना है, लेकिन एंटी लॉग जैसे मैंने इसका 0.602, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले वाले को क्या बोलते हैं? बिंदी। जो बिंदी से पहले वाला होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और इसको मैंने आप बताया था, इसको क्या बोलते हैं? मेंटिसा। लेकिन जो एंटी लॉग लगता है ना वो मेंटिसा का ही लगता है सिर्फ। वो कैसे? ये जो मैंने बताया था ऐसी टेबल से मिलेगी। अब हमें देखना है 0.02, यानी कि इधर मान लो 0.02 देखना है, यहाँ वर्टिकली वो वाला देखना है, जैसे हम ग्राफ रीड करते हैं। तो इसका कुछ तो आंसर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हम मेंटिसा का एंटी लॉग देखते हैं ना, हम नेगेटिव वैल्यू का कभी भी एंटी लॉग नहीं देखते। समझ में आ रहा है? हम इसका कभी भी एंटी लॉग जो है नेगेटिव वैल्यू का नहीं देखते। तो हम क्या करते हैं, -6.021 में हम +1 करते हैं और -1 करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं -6 प्लस -0.021 +1 -1, ऐसा कर सकता हूं। इसको स्प्लिट किया मैंने। ठीक है, क्यों स्प्लिट किया अभी बताता हूं। इन दोनों को कंबाइन करके मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो ये बन जाएगा -7 प्लस 1.000 में से 0.021 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा
7 और ये बनेगा 9, तो मेरे पास आएगा 0.979। ठीक है, इस चीज को अगर आप देखोगे किताब में या किसी में, इसको ऐसे लिखा होता है 7 बार 0.979, ये 7 बार होता है ऊपर, ये बार इंडिकेट करता है नेगेटिव। अब जो भी मेरा आंसर आएगा, मतलब इस टेबल में वो ऐसा आएगा, पॉइंट मान लेते हैं 134 आ रहा है, 5 ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव होता तो मुझे बिंदी कहाँ शिफ्ट करनी पड़ती, कैरेक्टरिस्टिक +1। अभी भी मुझे कहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स +1। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, -7 +1 कितना बनेगा, -6। इसका मतलब है इसको 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा इसके और इसके बीच में कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। अब सर हाँ, सर ये जो आपने अभी रुको रुको, join- कोई चिंता ना करो, छोड़ो इसको, चिंता होल्ड, सुन लो पहले एक बार। अब मैंने यहाँ पे ये आपको डिटेल समझाया है कि इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको नेगेटिव बनाना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक, अगर मेरा आंसर ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है ना, अगर मेरा ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो जो बिंदी शिफ्ट करनी है लेफ्ट साइड, बिंदी कहाँ शिफ्ट करनी है, लेफ्ट साइड, यानी कि इधर। कितनी शिफ्ट करनी है, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस कुछ नहीं, इसमें +1 नहीं करना। नॉर्मली हम कैरेक्टरिस्टिक्स +1 करते हैं ना, टेक्निकली देखो इसमें भी +1 हम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं जेनरिक स्टेटमेंट बोलूं तो ये बात सही है कि बिंदी राइट में शिफ्ट करनी है तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स +1, लेफ्ट में करनी है तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन वो कब करनी है वो सब कुछ हिसाब किताब बना के। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो ऐसे समझो कि अगर मेरा जो वैल्यू है, लॉग की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो मेरी बिंदी शिफ्ट होगी वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स +1 पे शिफ्ट होगी। यानी अगर मान लो 6.021 आ गया तो मेरे को बिंदी शिफ्ट करनी है राइट हैंड साइड में, कितने डिजिट शिफ्ट करनी है मुझे, 6 डिजिट्स। लेकिन अगर माइनस में आ गया तो मुझे उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करनी है, कितनी, 6 ही डिजिट, उसमें +1 नहीं करना है। बस यही समझना है और कुछ नहीं समझना आपको इससे ज्यादा, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो आईपीएम वाले 12th में आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी या करेंगे, इसलिए मैंने इसको और डिटेल में समझा दिया कि भाई, क्योंकि हो सकता है कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो, बोले नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स +1 तो होगा ही होगा, फिर तुम कहो नहीं सर हमने तो सुना है कि पॉजिटिव में नहीं होगा, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में नहीं होगा। बात वही है, घुमा फिरा के उसको समझने का तरीका ये है कि अगर आपको समझ में आ गया कि भाई उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे +1 -1 करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक नेगेटिव और बढ़ जाएगा, तो प्लस करेंगे तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए ये भी कह देते हैं, कुछ किताबों में सीधा ही लिख देते हैं कि भाई अगर नेगेटिव है ना तो कुछ नहीं करना, उतने ही डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 0, और अगर वो पॉजिटिव है तो कैरेक्टरिस्टिक +1 डिजिट्स शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। ये इसकी एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बोलिए, समझ में आ रही बात? हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? सर वो पूछ रहा था कि जो 1345 आपने लिखा हुआ है ये आया कैसे सर? कौन सा? सर ये ऐसे ही मैंने रैंडमली निकाल लिया, क्योंकि ये निकालना तो है ही नहीं ना, इसके लिए किताब होती है एक, उसको लॉग टेबल बोलते हैं, वहां से मिलती है ये डेटा, वो हमें एग्जाम में मिलेगी नहीं, इसीलिए कोई क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि एग्जैक्ट आंसर बताओ। नहीं तो अगर हमें लॉग टेबल मिलती ना तो कोई ये भी पूछ सकता था 2 की पावर -20 का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये बताओ, वो लॉग टेबल से देखना पड़ता। अभी चूंकि लॉग टेबल नहीं मिलती है तो सिर्फ ये दे देते हैं कि भाई कितने डिजिट्स का आंसर होगा, यानी कि व्हाट इज द स्ट्रिंग लेंथ अगर पॉजिटिव आया, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि डिजिट और बिंदी के बीच में कितने जीरोज हैं, यानी कि बेसिकली क्या है, पॉइंट्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं, डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आंसर निकालने के लिए। ये आंसर निकालने का तरीका मैंने कहा था ना, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए काम आता है। 2 की मेनली अगर उसने पूछ लिया कि अगर माइनस में आंसर आया जैसे, तो उसने पूछ लिया कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो तब तो बता ही नहीं पाएंगे सर। वो स्ट्रिंग की लेंथ पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि बिंदी के बाद अगर मान लेते हैं तुमने ये लिख दिया 0.1234000, कितनी लेंथ है इसकी, कुछ नहीं पता। इसलिए नेगेटिव में कभी भी ये नहीं पूछेगा स्ट्रिंग लेंथ क्या है, नेगेटिव में पूछेगा बिंदी और जीरो के बीच में कितने जीरोज हैं,
यानी डिजिट, ये डिजिट और बिंदी के बीच में कितने जीरोस आएंगे ये पूछेगा, क्योंकि ये आंसर तभी बनेगा जब वो वैल्यू 1 से कम होएगी। हर ही मेजर कर पाएंगे इससे स्ट्रिंग, हाँ हर ही मतलब हाँ हर एक की कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो, किसी भी चीज की स्ट्रिंग लेंथ बता सकते हो। हेयर, HAIR हेयर मतलब बाल होता है। हाँ बाल की स्ट्रिंग हाँ ये बात तो ठीक है। सर और पॉजिटिव में मतलब स्ट्रिंग लेंथ क्या C+1 जो बता रहे थे? बस हाँ उतनी लंबाई, उतना लंबा बनेगा जैसे हमने 2 की पावर 20 लिया था ना, 2 की पावर 20 को अब चूंकि छोटी वैल्यू अपन ने सॉल्व किया था तो मैंने तो गलती कर दिया था, ये बताया कि 7 डिजिट का आंसर आएगा ना, 2 की पावर 20 का आंसर ये है एग्जैक्टली, कैलकुलेटर से करोगे तो ये मिलेगा। कितने डिजिट्स हैं इसमें, स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, 7 डिजिट। अगर ये कैलकुलेटर ना हो तो हम ये तो बता ही सकते हैं 7 डिजिट कैसे, ये से 6.1 आ गया, यहाँ पे देखो 6.1 आ गया था, ये 20 इंटू 6 पॉइंट आ गया था, यानी 6+1 यानी 60 डिजिट का आंसर होगा, ये 60 डिजिट है, इसका ये मतलब मतलब सर है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 पॉइंट बाद पॉइंट शिफ्ट होगा। हाँ 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 7 डिजिट्स मतलब 7 के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। अगर ये सब समझ में आया तो मोर और लेस यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम्स। ठीक है, हाँ जी, एनी क्वेश्चन क्वेरीज, मैं अभी इसका वो लिंक बना के भेज देता हूँ आपको अपलोड करके, प्लस आपको वो भी दे देता हूँ, इसका जो नोट्स भी दे देता हूँ आज। सर अगर लॉग किसी लॉग का लॉग लिया जाए ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है? हाँ आ सकता है, लॉग ऑफ लॉग आ जाएगा, उसमें क्या है, बट वो जो अंदर वाला लॉग होगा ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग की रिजल्ट तो नेगेटिव आ ही सकता है। तो सर उसको मतलब नॉर्मल तरीके से सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसकी कोई हाँ प्रॉपर्टी और या क्या, अब अगर आप बोलो लॉग ऑफ लॉग 2 तो समझ में आता है, इसका मतलब log 2 की वैल्यू 0.34 होती है, यानी हम log ऑफ 0.301 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई बोले log ऑफ हाफ निकालना है, तो तो log ऑफ हाफ की जो वैल्यू होती है वो तो log ऑफ हाफ की वैल्यू -0.3010 होगी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब वो ध्यान रखना पड़ेगा, log जो भी निकालेंगे वो डिफाइंड रहना चाहिए फंक्शन, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, एनीबडी एल्स एनीथिंग सर बोलो। सर वो कल वाला लेक्चर भी कर देना अपलोड सर, वो मेरा आधे घंटे का रह गया था पहले वाला। अच्छा दिव्यम, तुम्हारी वो जो एक सेकंड मोटी सी किताब है ना उसमें मिलेगा, IPM वाली बुक में। ओके सर। ठीक है सर जो इसके बाद मैट्रिक्स का आप करवाओगे ये भी आप अपलोड करोगे? ना, ये मैं नहीं करवा रहा है, दूसरे सर करा रहे हैं, करनाल से जो कराते हैं। हाँ अच्छा वो भी लिंक मिल जाता है, वैसे उनसे बोल दोगे तो दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो इसी मैं ग्रुप कर, में IPM मिला है? हाँ हाँ वो इसी ग्रुप में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक नहीं है होगा तो संजू मैम से कोऑर्डिनेट कर लेना। सर ये ओके क्लास जो मैट्रिसेस वाली होगी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बैंकिंग वालों के लिए? नहीं ना लगाऊं तो सर कोई पंगा तो नहीं वैसे? नहीं, बाय द वे सारी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं कुछ पानीपत के स्टूडेंट से कर रहा हूँ, हिसार वालों के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है।